हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिक्टेशन। स्टार्ट करते हैं इन 5 सेकेंड। ये डिक्टेशन 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। टाइपिंग स्टूडेंट्स वालों के लिए एंड जिनकी स्पीड स्लो है, शुरुआती बच्चे हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो पेन पेंसिल लेके आप बिल्कुल रेडी रहें। स्टार्ट। नेक्स्ट वीक विल बी दैट time of the year when countries get into a huddle for the annual 2 week climate conference in Azerbaijan's capital Baku to fine tune global action on human caused global warming. To have any chance at keeping global temperatures from exceeding 1.5 degrees Celsius of pre-industrial levels. Multiple specific scientific assessments have said that greenhouse gas emissions must peak before 2024 at the latest and decline 43% by 2030. However, summing up all the collective commitments by countries to reduce their greenhouse gas emissions would lead to only a 2.6% decrease in global greenhouse gas emissions by 2030 compared to 2019 labels. Save from 2020, the year of COVID-19 pandemic, global emissions have only increased every year with 53 billion metric tons emitted in 2023. Given that most rich countries are loath to make compromises on their lifestyles and poorer developing countries aspire to be rich, the only practical solution envisaged is that the
developing countries grow rich while eschewing the proven fossils fuel led trajectory. However, the costs that these entail of shifting to cleaner but land intensive and relatively expensive renewable sources remain the proverbial bone of contention. In 2009, at the Climate Summit in Copenhagen, developed countries agreed to fund developing countries $100 billion annually by 2020 as climate finance to enable this transition. Though it is the United Nations that is supposed to ratify if these finance goals have been met. A lack of clarity on the definition of climate finance and delays in the financial crediting system have led to considerable angst among developing countries that these goals have been far from met. The Paris Agreement of 2016 requires the countries decide on a new collective quantified goal NCQG before 2025 with the $100 billion as a base value. Then there is also a quibble from the developed world that major emitters such as China and India, which are large economies and major polluters, must also contribute. It is widely expected that this NCQG will be a major point of discussion at Baku. Another
issue of import is carbon markets that have for long been touted as the solution to the problem of finance. Rich countries or companies finance counterparts in the developing world for renewable energy generation and carbon offsetting measures and gain tradable credits. However, specifying the rules on how this is accounted for it is a vexing problem. The hallmark of climate negotiations is that they are arenas of gladiatorial legals where the stated goal of reducing emissions seems to stretch further beyond reach. It is time that concrete action takes center stage. फुल स्टॉप। तो ये रही डिक्टेशन। वेरिएशन है 25 to 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम ज़्यादा स्पीड नहीं, 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स 30 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन। आप लिखें, अपनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी को इन्हेंस करें। ठीक, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में रिलेटिव्स, अपनी फैमिली में फ़ोन्स होंगे तो उस पर भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी बूस्टअप हो, मैं डेली बनाऊँ फिर। ठीक है, बूस्टअप होगा, इंकरेजमेंट होगा मेरा भी, तो मैं वीडियो को डेली डालूँगी और डेली डिक्टेशन का वीडियो आपके पास जाएगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आपकी इंकरेजमेंट के साथ साथ मेरा भी तो होना चाहिए। तो इसलिए शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें सभी लोगों से। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे डिवोटेड हैं, प्रेजेंट हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम विजिट की हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट्स अ वेरी crucial, very important session to all my students। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स हाईलाइट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, इज़ अ जर्नल एंड जीके। अजरबैजान कंट्री है, उसका कैपिटल बाकू। ठीक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब चलते हैं, मूव करते हैं स्पेलिंग। एमिशंस देखिए, असेसमेंट्स फर्स्ट स्पेलिंग एंड देन सेकेंड एमिशंस। असेसमेंट्स में ASSESSMENTS, डबल एस 2 बार इस स्पेलिंग में आता है। तो इसे ध्यान से प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लर्न हो जाएगा, आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी लाइन में, फर्स्ट लाइन के। असेसमेंट हैव सेड दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बीच वाला एस डबल होता है। ठीक, EMISSIONS एमिशंस।
नेक्स्ट मूव करते हैं। ये डबल स्पेलिंग वाला ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जैसे कमिटमेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए, मैंने कल बताया था कंप्राइजेस के बाद ऑफ या प्रपोजिशन नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? जब कंप्राइजेस वर्ब फॉर्म में हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है या नाउन फॉर्म में है तो कंप्राइजेस के साथ प्रपोजिशन लग सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे गिवन दैट मोस्ट कंट्रीज आर लोथ टू मेक कंप्राइजेस ऑन देयर लाइफ स्टाइल, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आपका डाउट। नेक्स्ट एक इडियम है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्बियल, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक। बोन ऑफ कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़, ठीक। देखिए हैव, फर्स्ट लाइन में फाइनेंशियल क्रेडिटिंग सिस्टम हैव लेड टू कंसिडरेबल एंगेस्ट अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो स्पेलिंग एरर्स में क्या देते हैं? स्पेलिंग एरर्स तो हो गया, 3 या 4 स्पेलिंग एरर बताया। अब ग्रामर की तरफ चलते हैं, ठीक। अमंग डेवलपिंग कंट्रीज, अमंग की जगह आपको एग्जाम्स में बिटवीन लगा देते हैं, तो बिटवीन सिर्फ 2 के लिए होता है, ठीक है। और एंड से जुड़ा हो तो बिटवीन, और दो कोई भी 2 थिंग हो उसके लिए बिटवीन। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज, सो वी यूज़ अमंग, ओके। तो ये रहा वेरी इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और प्लीज़ सेशन को अटेंड करें एंड लाइक शेयर करें, चैनल पर विज़िट करें, देखें कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, ओके। टेक केयर।